والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سمیت ملک بھر کے کئی مدارس میں منعقد ہوئے یوم آزادی کے تقاریب، یہاں ہے خصوصی رپورٹ۔ آبشار میں پھنسے 45 افراد کو بچا لیا گیا، 10 گھنٹے چلا راحت اور بچاؤ کا کام۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا انتقال ہو گیا۔ ہندو مہاسبھا نے میرٹھ میں قائم کیا پہلا ہندو کوڈ، ڈاکٹر پوجا شکن پانڈے منصف مقرر۔ آئین سازوں کی خواہشات و توقعات کے مطابق ملک کو نئی اونچائیوں پر پہنچایا جانا چاہیے، ممتا بنرجی کا بیان۔ کیرالہ ایک دن میں 27 اموات، کوچی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا، وزیر اعظم کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ رحمت ثابت ہوا یوم آزادی، جموں کشمیر میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے 7 قیدیوں کو ملی معافی۔ اب وائی فائی کی مدد سے بموں کی نشاندہی ممکن ہے، سائنسدان کا بیان۔ نیوزی لینڈ غیر ملکیوں کے گھر خریدنے پر پابندی عائد۔ امریکہ 300 مذہبی پیشواؤں نے 1000 بچوں کا ریپ کیا۔ سعودی عرب اپنے والد کے قاتل کا قصاص میں سر قلم کر دیا گیا۔ عمان میں خوفناک ٹریفک حادثے میں سعودی خاندان کے 7 افراد جاں بحق۔ قطر کا ترکی میں $15 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری کا وعدہ۔ سوڈان 22 طلبہ اسکول جاتے ہوئے دریائے نیل میں ڈوب گئے۔ ترکی سے تعلقات ٹھیک کر لو ورنہ قیمت بھاری دینا پڑے گی، CNN کا انتباہ۔ مسجد نبوی کے ممتاز عالم دین الشیخ ابوبکر الجزائر انتقال کر گئے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی کچھ تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی خبر مختلف مدرسہ و اسکولوں کے تعلق سے ہے جہاں پر کل یوم آزادی کی تقاریب سجائے گئے تھے۔ پہلی خبر بھٹکل سے ہے۔ ہندوستان کے 72ویں یوم آزادی کی تقریب جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں کل منائی گئی۔ قطیبہ رکن الدین کی تلاوت سے اس کا آغاز ہوا۔ رکن شورا جناب عبدالحمید صاحب دامودی نے پرچم کشائی کی۔ اسی دوران ہندوستان کا ملی ترانہ اصغر صدیقی، نبی اکبر ماور اور نصیر طاہر باپو نے مترنم آواز میں پڑھا۔ پھر طبیان ارمار نے آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیوں پر مختصر لب کشائی کی۔ محتمم جامعہ مولانا مقبول صاحب ندوی نے فرمایا کہ ہندوستان رنگارنگی تہذیب کا گوارا ہے۔ ہندوستانی تحریکات میں مسلمان دیگر افراد کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے رہے، تب جا کر 15 اگست 1947 میں ہندوستان کو آزادی کا پروانہ ملا۔ مولانا مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے مخاطب تھے۔ اسی طرح چنگیری میں آج کل 15 اگست کی جشن یوم آزادی کے موقع پر مدرسہ فیض عام مدنیہ میں ایک شاندار جشن منایا گیا، جس میں شہر کے معزز علماء اکرام کے ساتھ ساتھ شہر کی میونسپل پریزیڈنٹ شریمتی رتنما اور یس آئی شریمتی صاحب اور سب انسپکٹر گجندریا اور مادین شہر وغیرہ بھی بطور مہمان موجود رہے۔ ان تمام کی موجودگی میں مدرسے کے طلباء نے تلاوت قرآن پاک سے جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز فرمایا تھا۔ اسی طرح جمعیت علماء مہاراشٹرا کے دفتر کے سامنے بھی کل پرچم کشائی کی تقریب سجائی گئی تھی۔ مولانا زین الدین خان قاسمی صدر جمعیت علماء ساؤتھ ممبئی نے جنگ آزادی میں قربانیاں دینے والے علماء اکرام و دانشوران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ مدرسہ تعلیم القرآن کینامار گونڈوی میں بھی تقریب میں پرچم کشائی منعقد ہوئی تھی۔ مولانا محمد ذاکر قاسمی اور سینئر انسپکٹر قدم دیونار کے ہاتھوں ترنگی کی پرچم کشائی ہوئی اور اس موقع پر کئی افراد شرکت تھے اور مدرسہ تعلیم القرآن کے طلباء بھی اس وقت شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ یوم آزادی کے موقع پر مدرسے صفا بیٹا داسن پورا مین روڈ بنگلور میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر مدرسہ حاضہ کے سرپرست مولانا سید انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم نے شرکت کی۔ تقریباً صبح 9 بجے حضرت شاہ ملت کے دست مبارک سے ترنگا لہرایا گیا۔ اس حسین موقع پر اسی سال تعلیمی آغاز کرنے والے مدرسہ حاضہ کے طلباء نے جید انداز میں حمد نعت و تقاریر کا بھی مظاہرہ کیا اور مولانا موصوف کا بیان ہوا۔ اس کے علاوہ عادل آباد سے خبر ملی ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر دارالعلوم عزیزیہ دہی گاؤں منڈل بیلا ضلع عادل آباد میں ناظم مدرسہ مولانا اکبر الدین حسامی نے ترنگا لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد دارالعلوم کے طلباء نے دلچسپ تعلیمی مظاہرے بھی پیش کیے۔ یوم آزادی سے 2 دن قبل دارالعلوم میں قرات و نعت کا مسابقہ، اسی طرح کھیل کبڈی اور دیگر مقابلات بھی منعقد ہوئے تھے، جس کے انعامات اس موقع پر تقسیم کیے گئے۔
इसके अलावा सहारनपुर से भी खबर मिली है। 72वें जश्न यौम आज़ादी के मौके पर जामिया रहमत घगरोली में तलबाए जामिया ने हुब्बुल वतनी व जज्बे इसार वफा से सरशार कौमी तराने, नज़्में उर्दू, हिंदी व इंग्लिश जबानों में तकारीर, तारीख आज़ादी हिंद, शहीदान हुर्रियत, वतन की कुर्बानियों को उजागर करते हुए प्रोग्राम पेश किए। मदरसे हाजा में मिली काउंसिल जिला सहारनपुर के ज़ेर एहतिमाम परचम कुशाई व तिरंगे झंडे को सलामी। मोहतिम जामिया मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी जिला सदर मिली काउंसिल सहारनपुर के हाथों में अमल आई थी। अब खबर शिवपुरी से। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के सुल्तानगढ़ आबशार में फंसे हुए तकरीबन 45 अफराद को गांव के 3 नौजवानों की सूझबूझ और सिक्योरिटी इमदाद से देर रात महफूज निकाल लिया गया है। कल दोपहर होने वाले इस हादसे के बाद से वहां इमदादी काम जंगी पैमाने पर जारी है। जराये ने बताया कि मोहन्ना के रहने वाले 3 नौजवानों कल्लू बाथम, राम सेवक, प्रजापति और निशाद खान ने पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और इंतजामिया का खुसूसी ताउन किया। इन तीनों नौजवानों को इस इलाके की अच्छी मालूमात थी। सभी के ताउन से रात के अंधेरे में रस्सी और दीगर आलात की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर दरिया के दरमियान में फंसे हुए तकरीबन 45 सयाहों को महफूज निकाल लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी सियासत के कद्दावर लीडरों में शुमार होने वाले साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का तवील अलालत के बाद आज शाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इंतकाल हो गया, यानी एम्स में। वो 93 साल के थे और कई बरसों से बीमार चल रहे थे। एम्स ने शाम 5:30 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी करके बताया कि मिस्टर वाजपेयी ने 5:05 पर आखिरी सांस ली है। अस्पताल के मुताबिक गुज़िश्ता 36 घंटे से उनकी हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्हें गुज़िश्ता 11 जून को एम्स में भर्ती किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम मोदी समेत सभी सरकर्दा सियासी शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया है। अब खबर मेरठ से। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाते हुए आज मेरठ में हिंदू महासभा ने पहला हिंदू कोर्ट कायम कर दिया है। मेरठ में हिंदू महासभा के दफ्तर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद करते हुए महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा ने डॉक्टर पूजा शिकन पांडे को पहले हिंदू न्यायपीठ का पहला मुंसिफ मुकर्रर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा का कहना है कि हमने हुकूमत को एक खत लिखा था जिसमें हमने दारुल खज़ा को चैलेंज किया था और मुतालबा किया था कि सभी लोगों के लिए यह कानून होना चाहिए। हमने खत में कहा था कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो हम इस नौयत के हिंदुओं के लिए भी कोर्ट कायम करेंगे। अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हम पहले हिंदू कोर्ट का क़याम अमल में ला रहे हैं। अब खबर बंगाल से। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 72वें यौम आज़ादी पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क को आइन साजों की ख्वाहिशों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने मुजाहिदीन आज़ादी की ख्वाहिशात के मुताबिक आइडिया ऑफ इंडिया के सजाए गए ख्वाब को हकीकी मानों में मुकम्मल करें। दारुल हुकूमत कलकत्ता के रेड रोड पर रस्मी मार्च परेड और जश्न आज़ादी की तकरीबात शानदार तरीके से मुनक़िद किए गए थे। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और तालिब इल्मों ने दिलकश प्रोग्राम पेश किए। इनके साथ ही सकाफती और खिलाड़ियों के ग्रुप ने प्रोग्राम पेश किए और मुख्तलिफ महकमों की झांकियां भी निकाली गई। अब खबर केरला से। केरला में सैलाब और लैंड स्लाइड से मरने वालों की तादाद 47 तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक सिर्फ बुध को शदीद बारिश, लैंड स्लाइड और सैलाब से वाबस्ता वाकयात में 27 अफराद की जानें तलफ हो गई, जबकि हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इधर मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नजर कोच्चि एयरपोर्ट पर फ्लाइट की आमदोरफ्त हफ्ते तक के लिए बंद कर दी गई है। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बुध को दोपहर 2 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान किया था। कोच्चि एयरपोर्ट बंद होने के बाद कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इजाफी बोझ बर्दाश्त करने की पहल की है। बुध को दोपहर में जारी एक बयान के मुताबिक एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा है कि कालीकट एयरपोर्ट तैयारों का इजाफी बोझ उठाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोच्चि की फ्लाइट रद्द होने की वजह से खलीजी ममालिक में रहने वाले केरला के कई शहरी वहां एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। अब खबर जम्मू से। 72वां यौम आज़ादी जम्मू कश्मीर रियासत में उम्र कैद की सजा भुगत रहे 7 कैदियों के लिए बाइस रहमत साबित हुआ है, जिन्हें गवर्नर एन वोहरा ने माफी देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। गवर्नर ने रियासती आईन की दफा 34 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए यौम आज़ादी के मौके पर 7 कैदियों की बाकी मानदा सजा माफ कर दी है। हुक्म के मुताबिक इस सिलसिले में महकमे दाखिला के सेक्रेटरी RK गोयल की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके मुताबिक सजाए उम्र कैद भुगत रहे जिन कैदियों की सजा माफ की गई है उनमें बशीर अहमद, वलद शरीफ, साकना गोपाल,
गोपाला तहसील अखनूर, मोहम्मद इकबाल, शैलेंद्र सिंह, उमा देवी, साकंधनी धाड़ और हाजी शीरा साकिन रेवाला और अब्दुल अहद वगैरह शामिल हैं। अब खबर न्यूयॉर्क से। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कहा है कि आम वाईफाई की मदद से अवामी मकामात पर असलहे और धमाकाखेज मवाद की निशानदही की जा सकती है। वाईफाई के वायरलेस सिग्नल्स की मदद से बैगों के अंदर एक्सरे की तरह देखकर धाती अशिया की पैमाइश की जा सकती है और माए अशिया की मिकदार नापी जा सकती है। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक तरीक़ेकार कम से कम 95% दुरुस्त नताइज देता है। साइंसदानों ने कहा है कि इससे हवाई अड्डों में नस्ब सिक्योरिटी आलात का मुतबादिल मिल सकता है। तहकीक में शामिल साइंसदानों ने 15 किस्म की अशिया और 6 मुख्तलिफ किस्म के बैगों का जायजा लिया। यह वाईफाई सिस्टम खतरनाक अशिया पहुंचाने में 99% धातुओं की निशानदही के लिए 98% और माए के लिए 95% कारगर था। ताहम जब अशिया बैगों के अंदर किसी और चीज में लपेट कर रखी गई तो निजाम की दुरुस्तगी की शरह गिरकर 90% हो गई। एक कम कीमत वाईफाई आला या 2 या 3 एंटीना पर मुश्तमिल है और इसे मौजूदा वाईफाई नेटवर्क्स की मदद से चलाया जा सकता है। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में गैर मुल्की शहरियों पर घर खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड की हुकूमत ने गैर मुल्की अफराद पर घर खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। यह अफराद महंगे घर खरीद कर न्यूजीलैंड में छुट्टियां गुजारने आते हैं, जिसके बायस अमीर गैर मुल्कियों की दौलत के सामने मकामी अफराद को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। गैर मुल्की शहरियों के घर खरीदने पर पाबंदी का कानून न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। गुज़िश्ता बरस न्यूजीलैंड दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद की पसंदीदा जगहों में से था। हॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार जेम्स कैमरून, जोलियान रॉबर्टसन और रूस के मशहूर बिजनेसमैन मिकाइल केमिच की न्यूजीलैंड के महंगे तरीन इलाकों में जायदादें हैं। जबकि गुज़िश्ता बरस ये बात सामने आई थी कि अमेरिका की मशहूर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कंपनी पेपाल के शरीक, चेयरमैन और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी पीटर थाइल की भी न्यूजीलैंड में न सिर्फ जायदाद है बल्कि उन्हें हुकूमत की जानिब से वहां की शहरियत भी दी गई है। ये बात मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही इस हवाले से कानून बनाया गया जो गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया है। एक और खबर न्यूयॉर्क से। न्यू जेरी की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि पेंसिल्वेनिया में 6 कैथोलिक इंतजामिया से हासिल दस्तावेजात से वाज़ेह होता है कि तकरीबन 300 पादरियों ने 1000 से जायद बच्चों का रेप किया। जेवरी ने रिपोर्ट में बताया कि हमें यकीन है कि रेप का शिकार बेशुमार बच्चों का रिकॉर्ड लापता है या वो हजारों लोगों के सामने खुद को पेश करने से खौफजदा है। इस हवाले से मजीद बताया गया है कि पादरी छोटे बच्चों और बच्चियों का रेप कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार थे उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि तमाम मामलात में चुप्पी साध ली। उन्होंने मजीद कहा कि कई दहाइयों तक खामोशी इख्तियार की गई। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज पादरियों को जिनसी इस्तेहसाल के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि रिपोर्ट में शामिल मुतअद्दिद पादरी वो हैं जिन्हें आला ओहदों पर फाइज कर दिया गया। जेवरी ने वजाहत दी कि चर्च का इंतजाम प्लेबुक की तरह हक़ाइक़ को छुपाने का जरिया है। उनका कहना था कि FBI एजेंट्स ने जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक वाक़यात की निशानदही की जो उन्होंने चर्च की दस्तावेजात से तलाश की है। वाज़ेह रहे कि रवां बरस जून में पापा एरुम फ्रांसिस ने बच्चों के साथ रेप के स्कैंडल में मुलव्वस चिल्ली के 3 पादरियों की इस्तीफा मंजूर किए थे। मंजूर किए गए इस्तीफों में बिशप जॉन हारोस का भी इस्तीफा है जिन पर रेप के केस को छुपाने की कोशिश का इल्जाम है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में अपने वालिद को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नजर आतिश करने के जुर्म में क़िसास की सजा याफ्ता एक मुजरिम की सजा पर अमल दरामद करते हुए उसका सर कलम कर दिया गया है। अरबिया के मुताबिक अपने वालिद के कातिल बदबख्त शख्स की सजा पर वज़ारत दाखिला ने अमल दरामद किया। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि तुर्की बिन मोहम्मद बिन सारे अल कहतानी ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुजरिम को हिरासत में लेने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की तो मुजरिम ने अपने वालिद को कत्ल करने के जुर्म का एतराफ कर लिया है। तमाम शवाहिद और सबूत मिलने के बाद अदालत ने शाही फरमान के तहत मुजरिम को क़िसास में सजाए मौत सुनाई थी। अब खबर ओमान से। खलीजी रियासत सल्तनत ओमान में मंगल के रोज एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक सऊदी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलमनाक हादसा ओमान के इलाके हेमा में पेश आया। ओमान में कायम सऊदी सिफात खाने के मुताबिक वाक़े की तहकीकात कर रहा है। बयान में कहा गया है कि ट्रैफिक हादसा मस्कत और ज़िफ़ार के दरमियान पेश आया। तमाम जख्मियों और जाँ बहक अफराद को एम्बुलेंसों, वज़ारत ख़ारजा के मंदूबीन और पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर ओमान की पुलिस के मुताबिक हेमा रियासत में 2 कारों के दरमियान तसादुम हुआ जिसके नतीजे में एक कार में सवार सऊदी खानदान के 7 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए हैं।
अब खबर कतर से। अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद आल सानी अपने इत्तेहादी मुल्क तुर्की के साथ इजहार यकजहती के लिए बुध को अंकारा पहुंचे हैं। उन्होंने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है और उन्हें तुर्क करेंसी लीरा के बहरान से निमटने और अमेरिका की पाबंदियों के मुकाबले में अपने मुल्क की हिमायत का यकीन दिलाया है। तुर्क जराये के मुताबिक शेख तमीम ने तुर्की में 15 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमाकारी का वादा किया है। उन्होंने तुर्क सदर की जानिब से अपने एजाज में दिए गए जोहराने में तुर्की की इस माली इमदाद का ऐलान किया। कबल अज़ीज़ तुर्की के बाद मीडिया जराये ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया था कि अमेरिका के साथ बहरान पर कतर की खामोशी पर अनकरा हुकूमत को मायूसी हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स के मंजरेआम पर आने के बाद ही अमीर कतर शेख तमीम ने तुर्की का यह दौरा किया। कतर न्यूज एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि अमीर शेख तमीम तुर्क सदर के साथ दो तरफा ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मौजूद तस्वीराती ताउन को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादिला ख्याल करेंगे। तुर्क रोजनामे तकवीम ने मंगल को एक रिपोर्ट में कहा था कि कतर ने अनकरा की हिमायत के बजाय खामोशी इख्तियार कर ली है। हालांकि तुर्की ने 4 अरब ममालिक के साथ कतर के बहरान के वक्त उसकी हिमायत की थी। अखबार ने यह भी लिखा था कि तुर्की ने दसियों माल बरदार तैयारे दोहा भेजे थे और अरब ममालिक के बायकाट के बाद उसके शाना बशाना खड़ा हुआ था और उसकी भरपूर हिमायत की थी। ताहम तकवीम ने बाद में अपनी वेबसाइट से रिपोर्ट हटा ली थी। अब खबर सूडान से। सूडान के शिमाली जिला कबना में 22 कमसिन तलबा स्कूल जाते हुए दरियाई नील में डूबकर हलाक हो गए हैं। बदनसीब कमसिन तलबा एक कश्ती के जरिए अपने प्राइमरी स्कूल में जा रहे थे, लेकिन उनकी कश्ती का इंजन बीच दरिया में खराब हो गया। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और डूब गई। कबना के एक मुकामी अस्पताल की मुलाजिमा भी बच्चों के साथ दरिया में डूब गई है। सूडान की सरकारी खबर रसा एजेंसी सोना के मुताबिक कश्ती में प्राइमरी स्कूल के 40 से ज्यादा बच्चे सवार थे। ताहम उसने बाकी 18 बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया कि आया वो उन्हें जिंदा बचा लिया गया है कि नहीं है। सूडानी हुकाम तादमी तहरीर दरियाई नील में डूब जाने वाले बच्चों की नाशें निकालने में नाकाम रहे हैं और उनकी तलाश जारी थी। एक और खबर तुर्की से। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने अपने वेबसाइट पर शाये एक मकाले में मगरबी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि तुर्की से ताल्लुकात की खराबी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका से कशीदगी के बारे में मकाले में लिखा गया है कि अब तुर्की अमेरिका पर एतमाद और उसके साथ शराकतदारी में फूंक फूंक कर कदम उठाएगा। मकाले को बरतानिया में वाक़े चीट हेम हाउस के उमूर तुर्की के माहिर फादी हाकुरा ने तहरीर किया है, जिनके मुताबिक तुर्की अब मगरिब के बजाय रूस और यूरेशियाई ममालिक की तवज्जो हासिल कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब तुर्की नेटो को खैरबाद कहते हुए यूरोपीय यूनियन से अपने कस्टम मुआहदे को भी मनसूख कर देगा। इस मकाले में यूरोपीय यूनियन को मुतवज्जह करते हुए लिखा गया है कि वो तुर्की के साथ रुकनी मुज़ाकराती अमल तेज करे, दीगर उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की की तरफ से अमरीकी मसनूआत पर दरामदी टैक्सेस में इजाफे को भी इस मकाले में एक मुंह तोड़ जवाब करार दिया गया है। अब खबर मदीने से। मस्जिद नबवी के इमाम मुदर्रिस और मुमताज आलिम-ए-दीन शेख अबी बकर अल जज़ायरी कल बुध को 98 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। शेख जज़ायरी जुनूबी अल जज़ायर के लीवा के इलाके में पैदा हुए। उन्होंने अपने ही मुल्क में कुरान और हदीस में तखस्सुस किया। उसके बाद वो मदीना मुनव्वरा आ गए, जहां उन्होंने मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और मुफस्सिर कुरान के तौर पर दीनी और इल्मी खिदमत अंजाम देना शुरू की। उन्होंने वज़ारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम दारुल हदीस मदीना मुनव्वरा में बतौर मुदर्रिस और मुअल्लिम भी खिदमत अंजाम दी हैं। इनका शुमार जामिया इस्लामिया के अव्वलीन असातिज़ा में होता है। शेख जज़ायरी के इंतखाब पर सोशल मीडिया पर लोगों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है, जबकि सऊदी अरब की सरकर्दा शख्सियात ने भी मरहूम की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा